other part we call it as the septum membranaceum. Okay, one is the muscular part, which is quite thick, which I told you will come from here, here, here. It will start from this tip. It will start from this tip and it will go, and it is crescent shape. Okay, and the upper, so it means that the part which is lying above, lying over here, crescent, as it is crescent shape, over here the small foramen will leave behind. यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक foramen रह जाएगा. We call it as the interventricular foramen. This foramen, through the which lie above this crescent shaped curtain, this foramen is called as the interventricular foramen. Through this foramen, these two ventricles, they are connected with each other, and this foramen, it will get septum will, this muscular septum, it will get completed by that of the membranous interventricular septum. So you will get a complete interventricular septum. Okay, now initially the primitive right ventricle, you know that it is derived from the lower part of the bulbous chorus. ठीक है, MCQs के लिए बच्चे, आपने ऑस्पी के लिए आप याद रखें, आपने जो बातें याद रखनी है, आपसे मैं पूछ सकती हूँ कि प्रिमिटिव एट्रियम कहाँ से आया था. I can ask कि प्रिमिटिव एट्रियम कहाँ से आया था, प्रिमिटिव वेंट्रिकल कहाँ से आया था, लेफ्ट वेंट्रिकल का ओरिजिन क्या है, राइट वेंट्रिकल का ओरिजिन क्या है. ठीक है, आप मुझे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पार्ट्स बता दें. मस्कुलर पार्ट किधर से डिराइव होता है, मेम्ब्रेनस पार्ट किधर से डिराइव होता है. जैसे दीज ऑल आर फॉर योर MCQs. ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर OSPI क्वेश्चंस, वाइवा क्वेश्चंस. ओके, नाउ मैम, जी बेटा. मैम आईवी सेप्टम का ये मस्कुलर और ये मेम्ब्रेनस पार्ट कहाँ से डिराइव होता है, ये बात समझ में नहीं आई. अच्छा बच्चे, मैं अभी रिपीट करूंगी, आप सिर्फ सुने ना, मैं रिपीट करती हूँ सब कुछ. ठीक है बच्चे, इनिशियली सुने. The primitive right ventricle, it is derived from the, कहाँ से आ रहा है primitive right ventricle? Yes, anyone? Proximal 1/3 of the bulbous chordus. Very good, excellent. Lower part of the bulbous chordus, middle part of bulbous chordus को क्या कहते हैं? Conus cordus. और जो डिस्टल पार्ट है उसको क्या कहते हैं? Truncus arteriosus. ट्रंकस. और बच्चे, एग्जाम के लिए आपने हर रेक के डेरिवेटिव याद करने हैं फॉर द MCQ एंड फॉर योर OSPI. ये मैं आपको बता दूं, ब्लॉक C में आप जब भी मेरे पास आएंगे वाइवा के लिए, आपने इनके डेरिवेटिव याद करके आने हैं. ठीक है? ठीक है मैम. ठीक है. लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज derived from the original ventricle. It do not have any partition between them. At the end of 4th week, these two ventricles, they begins to grow rapidly. Okay, their medial walls, they are also expanding. ठीक है, and they will produce a thick muscular ridge, which is the primordium of the muscular interventricular septum. पहले ये आपके पास एक रिज अपीयर होगा, जहाँ पे एपेक्स ऑफ द हार्ट है ना, वहां पे एक रिज अपीयर होगा. फिर बच्चे, ये जो आपको साइड्स नजर आ रहे हैं ना, ये साइड्स, ये सारा, ठीक है ना, यहाँ पे एक्चुअली ये तो हमारे पास एंडोकार्डियम है ना. एंडोकार्डियम में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मायोब्लास्ट सेल्स जो हैं आ जाएंगे. ये सारे जो हैं ये प्रोलिफरेट करेंगे और यहाँ पे क्रीसेंट शेप आपके पास पूरा कर्टन आ जाएगा. क्रीसेंट शेप का मतलब मेरा क्या है, एक्चुअली दे ग्रो फ्रॉम हेयर, दे विल ग्रो फ्रॉम हेयर, बट इन द मिडल ऑफ द 7th week it will stop here. They will grow from here. जो बच्चे जिसको समझ नहीं आ रही, लिसन, ये वाला this will grow from here and it in the middle of 7th week it will stop. So what you will get the crescent shaped muscular interventricular septum. Okay, Yes ma'am. and this stop in the middle of the 7th week, and there is a gap, crescentic gap is remain behind between the septum intermedium
and that of the free edge of the septum musculari. We call it as the interventricular foramen. ये septum intermedium किधर से आया था? Fusion of the endocardial cushion. एंडोकार्डियल क्वेश्चन किधर से आए थे? AV canal. आप सही कह रहे हैं, एक बच्चे नहीं बेटा, इसमें हमारे पास ये होता है कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं, एक बच्चे ने अभी कहा है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ही इज राइट. न्यूरल क्रेस्ट सेल्स दे आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द कोनोट्रंकल सेप्टम. ठीक है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज कोनोट्रंकल सेप्टम. I am teaching you the muscular part. When I will teach you the membranous part, then we will discuss the neural crest cells. Okay? Okay, ma'am. ठीक है ना? तो अभी ये closure of foramen किधर से होगा? It will occur during the 7th week by the formation of the septum membranous. ठीक है? और यही septum membranous कहाँ से आएगा? ये वाला आपका जो है सेप्टम मेम्ब्रेनस, अभी हमारे पास सेप्टम मेम्ब्रेनस की हमारे पास 2 कंट्रीब्यूशंस हैं. ठीक है, आपने जो एमसीक्यू के लिए याद रखना है वो ये है कि द सेप्टम मेम्ब्रेनस, इट इज फॉर्म मेनली by the tissue which is derived from the inferior or the ventral endocardial cushion. ठीक है ना? यस और नो? मैम एक बार फिर समझ नहीं. देखिए बच्चे, हमारे पास जो सेप्टम मेम्ब्रेनस है ना, सेप्टम मेम्ब्रेनस की 2 कंट्रीब्यूशंस हैं. ठीक है, 2 चीजों से हमारे पास सेप्टम ट्रांसवर्सम बन, ये सेप्टम मेम्ब्रेनस बन रहा है. सेप्टम मेम्ब्रेनस तो ये जो आपके पास एक फ्यूज्ड ये कुशन पड़ा हुआ है ना, ये थोड़ी सी इधर से कंट्रीब्यूशन करेगा, एक ये जो आपके पास ये कुशन है ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन, और इसमें जो इंफीरियर कुशन है ना, जो वेंट्रल, मेनली वो इसको कंप्लीट करेगा. ठीक है, यहां तक ठीक है? समझ आ रही है? क्लियर हो गया बेटा? ठीक है ना? मैं पहले डायग्राम्स को वो कर लेती हूँ. मेम्ब्रेनस जो है फ्यूजन ऑफ 3 से राइट, ये राइट बल्बर रिज है, लेफ्ट बल्बर, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. एंड एंडोकार्डियल कुशन, एक्चुअली दीज बल्बर रिजेस दे आर फ्रॉम द कोनोट्रंकल सेप्टम. ये कोनोट्रंकल सेप्टम में एक्सप्लेन करती हूँ, तो ये बल्बर रिजेस को भी एक्सप्लेन करती हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, यू कैन सी अ सेप्टम. ठीक है, actually the cushions, these endocardial cushions, they will form the valves. ये हमारे पास valves बन रही हैं. ठीक है ना? और ये वाला हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट है. एक इसकी कंट्रीब्यूशन है, दूसरा एक हमारे पास जो है सेप्टम की कंट्रीब्यूशन. ठीक हो गया ना? यहां तक आप मेरे साथ हैं? यस मैम. अच्छा, अभी हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं कि आपको थोड़ा याद हो जाए. फिर मैं दोबारा से इस पे आऊंगी. Partitioning of the division of primordial ventricle is first indicated by the median muscular ridge, the primordial interventricular septum. It is a crescentic fold, has a concave free edge. अभी बताया था मैंने. Initially, most of its height results from the dilatation of ventricle on each side of the IV septum. ठीक है? Medial walls of the enlarging ventricle approach each other and fuse to form the primordium of the muscular part of IV septum. Active proliferation of myoblast in the septum increasing its size. यहाँ तक मैंने करवाया था. Until the 7th week, there is a crescent-shaped interventricular foramen between the free edge of the interventricular septum and the fused endocardial cushion. ये भी करवाया मैंने अभी आपको. The IV foramen permits the communication between right and left ventricle.
It usually closes by the end of 7th week. मैंने आपको कहा था middle of 7th week में हमारे पास foramen बन जाता है. वहां तक ये वहां तक हमारे पास सिर्फ हमारे पास एक मस्कुलर सेप्टम ही बन रहा है. ठीक हो गया ना. और जो मेम्ब्रेनस सेप्टम है जिसकी दो सोर्सेज हैं, एक कोनोट्रंकल सेप्टम है और दूसरी कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन है. ठीक है. No, by the end of 7th week, you will get the interventricular septum. So, understand, ये जो आपके पास right और bulbar ridges हैं, left bulbar ridges हैं, actually these two will form these ridges, they are formed in the bulbous cordus. ठीक है ना. ये दोनों जो हैं ये कोनोट्रंकल सेप्टम बनाती हैं. कैसे बनाती हैं ये डिस्कस करते हैं. ठीक है. लेकिन आपको ये देख लें, membranous part is derived from extension of tissue from right side of endocardial tissue. बस सिर्फ आपने याद रखना है, it is derived from the endocardial tissue cushion to the muscular part of the interventricular septum. This may it will merges with the aortic pulmonary septum and thick muscular part of the IV septum. इस पॉइंट की आपको समझ नहीं आई होगी, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी आपको, फिर मैं इस पॉइंट पे दोबारा आऊंगी. After closure of this foramen, the membranous part of the IV septum, the pulmonary tract, it is in direct communication with the right ventricle. ये दोबारा मैं आती हूँ इस पे, ये आपको अभी समझ नहीं आएगी. ठीक है. इसके लिए मैं थोड़ा सा आगे जाते हैं. ठीक है. ये देखिए मस्कुलर पार्ट बन रहा है. ठीक है. और अच्छा, अब आप बात ये है कि एक तो हमने पार्टीशनिंग पढ़नी थी, एक हमने पढ़ना था आउटफ्लो ट्रैक्ट. आउटफ्लो ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि द how this right ventricle it opens into the pulmonary trunk and how this left it is opening into the aorta. हमने ये स्टडी करना है. ठीक है ना. इस आउटफ्लो ट्रैक्ट मतलब किस तरह ट्रैक्ट बन रहे हैं. देखिए बच्चे, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उससे हमारे पास प्रिमिटिव राइट वेंट्रिकल बन गया. इधर आप देखें जो प्रॉक्सिमल पार्ट था, ये मेरे पास सारा बल्बो कॉर्डस का पार्ट है, ये मेरे पास सारा बल्बो कॉर्डस का पार्ट है. ठीक हो गया ना. अगर आप इस बल्बो कॉर्डस के पार्ट को देखें तो एक प्रिमिटिव राइट वेंट्रिकल है, then we have the this part which is called as the conus cordus, and then we have the truncus arteriosus from which these aortic arches these are given. ठीक है. Now actually the outflow tract it is formed over here, from here. ठीक है. One primitive right ventricle it will open into the pulmonary trunk. Primitive right ventricle will open into the pulmonary trunk while that of the left will open into the aorta. How it happens? Now अगर ये देखें, you can see the septum it is forming. ठीक है. Muscular septum it is forming into the right ventricle. ठीक है. And you can see the separate, the cavity it is opening through this canal. One is right, one is left. Okay. You can see this is the septum, this is the cavity, and this cavity they are opening to the right and left side. Left atrioventricular canal, right is going to the right atrium, left is going to the left atrium. ठीक है. अब ये इसमें मैं बाद में आती हूँ. ये डिवीजन को आप पहले पढ़ लें. बल्बस कॉर्डस के जो पार्ट्स हैं ये आप कर चुके हुए हैं. प्रॉक्सिमल पार्ट जो है बास बुक्स में इसका नाम नहीं लिखा हुआ, बास बुक्स में लिखा हुआ इट्स अ राइट वेंट्रिकल. मिड पोर्शन कोनस कॉर्डस, डिस्टल पोर्शन ट्रंकस आर्टरियोसिस. बेटा मैं रिपीटेडली कह रही हूँ, डेरिवेटिव्स याद करने हैं. In the 5th week of proliferation of the mesenchyme in the walls of the bulbous cordus form a proximal and distal bulbar ridges. ठीक है. अब बच्चे हम क्या डिस्कस करेंगे
कि कोनस कॉर्डस का जो पार्ट है, कोनस कॉर्डस में एक सेप्टम बनेगा और एक सेप्टम हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसिस में बनेगा, ठीक है ना। कोनस कॉर्डस में एक सेप्टम बनेगा, एक सेप्टम हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसिस में बनेगा। जो कोनस कॉर्डस में जो सेप्टम बनेगा वो ज्वाइन कर लेगा सेप्टम जो ट्रंकस आर्टरियोसिस में जो सेप्टम बन रहा है, तो इन दोनों को मिला के हम इनको कोनो ट्रंकल सेप्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। जब ये सेप्टम बनेगा तो ये कोनस कॉर्डस को और ट्रंकस आर्टरियोसिस को, रिपीट करो प्लीज। बेटा हमने बल्बस कॉर्डस का एक पार्ट राइट वेंट्रिकल को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। नाउ आई एम डिस्कसिंग द कोनस कॉर्डस एंड आई एम डिस्कसिंग द truncus arteriosus. One septum will form in the conus cordus and another septum it will form in the truncus arteriosus. Okay, these two septum, the जो conus arteriosus में बनेगा और जो septum बनेगा truncus arteriosus में, these two septum they will fuse with each other, okay, and they will divide this conus cordus and the truncus arteriosus into two. One is the pulmonary trunk and other one is the aortic one is the conus cordus में जो हमारे पास बनेगा, अभी बताती हूँ वो भी आपको, कि जो कोनस कॉर्डस में बनेगा वो हमारे पास एक कोनस आर्टरियोसिस बनेगा, या इसको इन्फंडिबुलम कहते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे पास कोनस कॉर्डस का दूसरा पार्ट बनेगा उसको हम वो हमारे पास उसमें पल्मोनरी, उसको हम आयोटिक पार्ट कहते हैं, ठीक है ना। और जो इधर बन रहा है वो हमारे पास इनफंडिबुलम बन रहा है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल जो है वो इनफंडिबुलम में ओपन होगा, आयोटा जो है वो आयोटिक पार्ट में ओपन होगा। यस और नो? नो मैम। मैम ये स्लाइड शो नहीं हो रही। नहीं समझ आ रही आपको? मैम ये स्लाइड चेंज कर रहे हो, डायग्राम शो नहीं हो रही। अच्छा देखिए, सिर्फ ये याद रखें कि बल्बस कॉर्डस का कोनस और ट्रंकस आर्टरियोसिस पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तक ठीक है? यस मैम। कोनस कॉर्डस में एक सेप्टम बनेगा, ट्रंकस आर्टरियोसिस में दूसरा सेप्टम बनेगा, यहाँ तक भी ठीक है? यस मैम। अच्छा, मैं यहाँ पे आप यहाँ तक आप जरा इसको देखें। मैं आपको ये जो साइड्स पे बन रहे हैं ना, दीज आर द बल्बर रिजेस। आप इस डायग्राम पे फोकस करें, ठीक है, आप इस डायग्राम पे फोकस करें, जो ये वाली है ना, ये इसको आप फोकस करें। जो हमारे ये जो साइड्स पे आपके पास बन रहे हैं ना, ये बल्बर रिजेस है। कोनस में जो बन रहे हैं वो जो कोनल पार्ट है हमारे पास, कोनस पार्ट है, उसमें जो बल्बर रिजेस बन रहे हैं, एक हमारे पास एक बनेगा राइट साइड पे डॉर्सल में बनेगा, लेफ्ट साइड पे वेंट्रल वॉल में बनेगा, ठीक है। आप बल्बर इसकी पार्टीशन को याद रखने के लिए 4 पॉइंट्स याद रखें, ठीक है, बल्कि अपने पास लिख लो, कि बल्बर इसकी पार्टीशनिंग कोनस कॉर्डस की कैसे हो रही है। First, I am telling you the conus part, then I will tell you the truncus part, okay? In the conus part, the bulbar ridges, they are called as the conus swelling, okay? One is formed in the right side and other is formed on the left side. So first point, write down the bulbar ridges, okay? आप लिखिए bulbar ridges, they are formed, called as the conus swelling. One is in the right dorsal, other one it is called as the left ventral, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए कि हमारे पास बल्बर रिजेस बन गए। सेकेंड पॉइंट आप लिखिए कि they approach each other and they form a septum which is called as the conal septum, ठीक है। Yes or no? Yes, ma'am. बेटा yes or no?
देखिए आप अपना आप अपना राइट हैंड ले लें, ठीक है, राइट हैंड को अपने सामने थोड़ा सा ऑब्लिकली पकड़ लें, ठीक है। आपका जो रिस्ट वाली जगह है, रिस्ट वाली, दिस इज राइट डॉर्सल, ठीक है। और आपका जो आपकी जो टिप है मिडल फिंगर की, वो आपका है लेफ्ट वेंट्रल, ठीक है। यहाँ पे दो ridges, they approach each other and you will get a septum which is called as a conal septum, ठीक है। यहाँ तक ठीक है आपके? Yes, ma'am. देखिए Ma'am, आप अपना राइट हैंड लें और उसको पकड़ लें थोड़ा सा ओब्लिकली, लेफ्ट साइड की तरफ से ओब्लिकली। आपके रिस्ट के पास जो है वो रिज है जिसको हम कहेंगे डॉर्सल रिज, राइट डॉर्सल रिज, और जो लेफ्ट वेंट्रल साइड पे उसको लेफ्ट वेंट्रल रिज कहेंगे। These ridges they approach each other and you will get the septum, ठीक हो गया। अगर आप देखें तो this will divide this conus cordus into interior lateral part and it will divide into posterior medial part, ठीक है। जो interior lateral part है, it is called as the infundibulum, it is called as the conus arteriosus, ठीक है। और जो posterior medial part है इसको हम कहेंगे aortic vestibule। ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट जो है कि दिस इंटीरियर लैटरल पार्ट which we call as the infundibulum, it will joins the pulmonary, it will joins the right ventricle, ठीक है। एंड लोअर और ऊपर जो है ये ज्वाइन करेगा पल्मोनरी ट्रंक को, नीचे ज्वाइन करेगा राइट वेंट्रिकल को। और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो लेफ्ट आपके पास जो पोस्टीरियर मीडियल पार्ट है जिसको aortic vestibule कहते हैं, it will join lower down, it will join the left ventricle and above it will join the aorta. Yes or no? I think no. आर्टिकोपल्मोनरी Ma'am, सेप्टम repeat है, करो। इसको इन्फेंडिबुलम कहा है आपने? बच्चे आप अपना, मैंने अभी आपको कहा है कि सपोज अब मैं कोनस कॉर्डस में आप हैं, कोनस कॉर्डस में आप अपना हाथ ऑब्लिकली रखते, ठीक है, राइट। तो राइट आपका जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर जो रिस्ट के पास पार्ट है, वो एक बल्बर रिज है जिसको कोनल स्वेलिंग कह रहे हैं। आगे वाला पार्ट जो है उसको वेंट्रल स्वेलिंग। ये आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि पार्टीशनिंग में यू विल राइट बल्बर रिजेस विल फॉर्म, नंबर 1। नंबर 2 यू विल राइट द कोनल सेप्टम विल फॉर्म, ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट आप लिखें इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट्स बताएंगे। फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे इट विल जॉइन, जॉइन किसको करेंगे वो मैं रिपीट करती हूँ। 4 पॉइंट्स हो गए। कौन बताएगा फर्स्ट पार्ट क्या है? Bulbar ridges. Name Bulbar ridges. Then second part, they Conal fuse septum. together. Joined with each other, forming the conal septum. और फिर थर्ड पार्ट, Divide the conus cordus into two parts, the anterolateral and the posterior medial parts. शाबाश। And this will, the interior lateral part is called infundibulum. Lower down it will join the right ventricle, above it will join the pulmonary trunk. Lower down you can see the posterior medial part, it will join the aorta, ठीक है, and it will join the left ventricle, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये दरमियान वाला पोर्शन देखें, यहाँ पे यूं करके रिच बना है, ठीक है। आगे जो है ट्रंकल पार्ट में फिर आप लिखें कि ट्रंकल पार्ट में फिर 4 पॉइंट्स हैं। यू विल से 2 ridges will form. Number 2 लिखे it will pursue the spiral course. Fusion of the truncal ridges with each other produces a aorticopulmonary septum. ये ridges fuse करेंगे, ऊपर के सेप्टम को हम कोनल सेप्टम कहते हैं, इस सेप्टम को हम aorticopulmonary septum कहते हैं, ठीक है। and we divide it into the ascending aorta and the ascending aorta and pulmonary trunk. मैं थोड़ा सा तेज हो जाती हूँ। these two they join with each other. देखें ये आप देखें, पहला सेप्टम परस्यू स्पाइरल कोर्स क्या है,
देखिए अगर आप, मैं यहाँ पे सेक्शन लेती हूँ, मैं यहाँ पे अगर सेक्शन लेती हूँ लोअर पार्ट में, तो आप देखें हमारे पास ये जो है सेप्टम, हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक जो है फ्रंट पे पड़ा हुआ है और मेरे पास आयोटा बैक पे पड़ा हुआ है, ठीक है। सेकंड में आप लेकें तो हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक जो है वो राइट पे पड़ा हुआ है और ये लेफ्ट पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट आप सेक्शन लेंगे तो इंटीरियरली आयोटा है, पीछे आयोटो को पीछे आपके पास पल्मोनरी ट्रंक है, स्पाइरल कोर्स है। फर्स्ट में ये फ्रंट में पल्मोनरी ट्रंक है, पीछे आयोटा पड़ा हुआ है। नेक्स्ट में आयोटा लेफ्ट को है और यहाँ पे ये राइट को है, यहाँ पे इंटीरियरली है, यहाँ पे पोस्टीरियरली है, ठीक हो गया। ये एक स्पाइरल कोर्स है। इनिशियली द असेंडिंग आयोटा एंड दिस pulmonary trunk, they are fused with each other, ठीक है। But later on what happened, programmed cell death occur and they get separated from each other. एक बच्चे ने कहा था neural crest cells, yes, neural crest cells, they play important role in development of the conotruncal septum. These cells, they originate in the neural folds in the hindbrain region, then they migrate into third, fourth and sixth pharyngeal arches. Now whenever it has great contribution in the formation of this septum, but whenever there is abnormality in the migration, in the proliferation, in the differentiation of these cells, it will result in the many congenital defects. ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंजेंट है। हम थोड़ा सा बैक पे चले जाते हैं, टाइम हमारे पास खत्म हो गया। यहाँ पे हमने किया था ये अभी आप देख लें, आपके पास तो आ जाएगी ये पीपीटी, तो आप इसको दोबारा खुद भी पढ़ लें, ठीक है। वैसे भी इंशाल्लाह 14 से कॉलेजेस खुल रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होगा बच्चे तो मैं रिपीट कर दूंगी। ये दरमियान में आप रेड ये देखिए ना, ये आपका सेप्टम है, ठीक है। ये जो स्पाइरल है ना, ये सेप्टम है। कहीं पे देखें हमारे पास ये आप देख लें, ये दोनों रिजेस हैं, ठीक है। और ये ब्लू वाला देख लें, ये हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक बताया हुआ है, ये रेड वाला जो है हमारे पास जो है ये आयोटा बताया हुआ है, ठीक है। फिर ये इसको आप रीड एक दे देंगे मस्कुलर पार्ट को, और इस पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन फ्यूजन ऑफ टिश्यू विद द, एक मिनट, now come again to the membranous part of the interventricular septum. There is a proliferation of tissue from the right side of the endocardial cushion. As I told you that the muscular part, it will arise from the wall, okay, but the membranous part, it has two sources. One is that of the endocardial cushion, or other one is the aorticopulmonary septum, okay. And from where you get this aorticopulmonary septum, this septum is actually formed in the truncus arteriosus, okay. And then there's the cavitation of the ventricular wall forming the trabeculae carni and the papillary muscles, and then the chordae tendineae, okay. That's all बच्चे। मैम जी बेटा। मैम वो ट्रंकल पार्ट में जो 4 पॉइंट्स है वो आप प्लीज रिपीट कर सकती है? वो किसके? मैम वो ट्रंकल पार्ट की वो रिजिस फॉर्मेशन एंड हाँ देन जी, उसके बाद मैंने आपको कहा है ना कि आप कोनल के 4 पॉइंट्स याद करने के लिए मैंने सिर्फ बताया है, ठीक है। पहले आप लिखते हैं कि रिजिस फॉर्म हो गए कोनल पार्ट के लिए, कोनल रिजिस, यू कैन कॉल इट एज द कोनल स्वेलिंग, ओके। सेकंड आप बता दें कि कोनल सेप्टम इट इज फॉर्म, ओके। थर्ड पार्ट आप इसको बताएंगे कि इंटीरियर लैटरल पार्ट को हम इन्फेंडिबुलम कहते हैं, और पोस्टीरियर मीडियल पार्ट जो है उसको हम कहेंगे आयोटिक वेस्टिब्यूल, ठीक है। फिर आप उसको बता दें कि ये ऊपर किधर ज्वाइन कर रहे हैं, ऊपर आप कहेंगे पल्मोनरी ट्रंक आयोटा को, नीचे आपको आता है कि आयोटा किधर से आ रहा है, पल्मोनरी ट्रंक किधर से आ रहा है,
ठीक हो गया। इसी तरह आप ट्रंकस आर्टरियोसिस का बता देंगे। ट्रंकस आर्टरियोसिस में आप फर्स्ट पार्ट बताएंगे कि बल्बर रिजेस दे आर फॉर्म, ठीक है। These ridges they are as they are forming in the truncus arteriosus, so we call it as a truncal ridges. Second point आप लिखेंगे कि हमारे पास it pursue a spiral course, ठीक हो गया। थर्ड आप लिखेंगे, आप उसका अगेन आप पार्ट्स लिखेंगे कि एक तरफ हमारे पास आयोटा बन रहा है और दूसरी तरफ हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक बन रहा है, ठीक है। फिर आप बताएंगे ये कैसे ज्वाइन कर रहे हैं। आप नीचे का पार्ट बता देंगे कि नीचे जो है ये ज्वाइन कर रहा है इन्फर्निबुलम को, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक, और जो दूसरा है आयोटिक वेस्टिब्यूल है वो ज्वाइन कर रहा है आयोटा, ठीक हो गया। The truncus arteriosus actually give rise to the roots and the proximal part of the aorta and the pulmonary trunk. Proximal part of the pulmonary trunk, proximal part of the ascending aorta, ठीक है ना, and the roots of the aorta and the pulmonary trunk. Clear? Yes, ma'am. The membranous part, I told you that in the middle of the 7th week, this muscular part, it starts growing and you will get the crescent shaped muscular septum, okay, and in the crescentic upper part you will get just a foramen, the interventricular foramen, through which this left ventricle, it is connected to that of the right ventricle, and this foramen, it get completed, it is when it is get fused with that of the membranous part. The membranous part, it comes from the inferior endocardial cushion, okay. These endocardial cushion, actually they form the valves of the heart, and other contribution is from that of the conotruncal septum. The septum which is formed in the conus, the septum which is formed in the truncus, they fuse together and they form a conotruncal septum. So the membranous septum, it is formed from two sources. One is from the endocardial cushion, other is from that of the conotruncal septum. Clear? Yes? Yes, ma'am. Okay, thank you. Hi. قولوا خير يا ابني. نبي ان شاء الله. بس اخوي يجيني واش هذا مصر. سر بدايه وقت بكي. ابدا من نهارني يا سر. ما تكشوش. اه टेंशन वाला सा कुछ भी यूज कर दियो हाँ ده المشكله العوارض انا خايف بس وارث فرماده كل الكافه كلهم بس كده